Good morning, students. We have already taken the topic Coulomb's law in electrostatics. तो हम लोग Coulomb's law in electrostatics पढ़ चुके हैं और आज हम देख रहे हैं Coulomb's law in vector form. तो actually Coulomb's law is giving the force between the 2-point charges. When there are 2-point charges kept at a certain place by separating certain distance, so force given by the formula you have already studied, F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, where q1 q2 are the magnitude of the charges and r is the distance between them. Now we will take the Coulomb's law in the vector form. So why we take in the vector form? Because when we give the force between the two charges, so we have to know about the direction of that force, as well as we should have also the idea of which charge have applied the which force and upon what charge. मतलब कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा फोर्स किस चार्ज ने किस डायरेक्शन में किस चार्ज के ऊपर लगाया. तो देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, एंड ये दीज टू चार्जेज आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस स्मॉल r. तो here are the two forces are written, F12 and F21. The direction of F12 is in this direction and F21 in the right direction. So what is this F12? It is the force on this Q1 due to this charge Q2. And what is F21? This is the force on Q2 due to the charge Q1. So these forces have the opposite direction because these two charges are the like charges. Like का मतलब एक जैसे चार्ज हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं. तो how we will write the expression for these two charges? इनका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द Coulomb's लॉ, जैसा कि हम जानते हैं, Coulomb's लॉ क्या होता है? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. जैसे सपोज दिस इज द फोर्स F12, दिस वन इज द F12, सो दिस इज द F12, 1 upon 4 pi epsilon naught product of the charges divided by the square of distance between them. So here is this vector R21 magnitude whole square. What is this? So as we know that when we talk about this force F12, here F12, so see the direction of that force. इसकी डायरेक्शन देखेगा, इसकी डायरेक्शन देखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में है. तो and we have written here R21 vector. Which is R21 vector? Vector which starts from Q2 towards Q1. तो जो Q2 से स्टार्ट है वेक्टर और जो Q1 की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी वेक्टर R21. तो वेक्टर R21 की वही डायरेक्शन है जो F12 की डायरेक्शन है. तो दैट्स वाई, तो इट मीन दिस डिस्टेंस व्हेन वी स्टार्ट from here to here, so it will be the vector R12, and when we start from here to here, we will write vector R21. In this condition, for this force, there will be the vector R21 because F12 and R21 have the same direction. So that's why we have written here R21. So magnitude of R21 vector, if this distance is represented by a vector either 1 2 vector or 2 1 vector, so magnitude will be equal to this r only. तो इसका मैग्नीट्यूड r ही होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन यही होगी जो F12 की डायरेक्शन. नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो इतना टर्म है ये स्केलर है. दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग. दिस इज द यूनिट वेक्टर R21. तो वी कैन take the unit vector in the direction of vector. So if we have taken the vector R21 here, जैसे हमने R21 वेक्टर लिया तो उसी की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर ले करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये वेक्टर हो जाए, बिकॉज वेक्टर कैन बी इक्वल टू द वेक्टर.
So that's why this is the equation number 1. So it gives the force on Q1 due to Q2 in this diagram. Now similarly, what about this force? So you can write the expression for that force also. F21, इसको अगर हम लिखेंगे F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेज आर Q1 एंड Q2, चार्ज तो वही है Q1 और Q2, बट इन दिस केस बिकॉज F12 की इधर ये राइट डायरेक्शन है, सो वी हैव टू टेक द दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, यानी कि हमको 1 2 लेना होगा, तो यहाँ पर R21 की जगह 1 2 लेना होगा, एंड सिमिलरली द वेक्टर यूनिट वेक्टर विल बी R यूनिट वेक्टर 1 2. तो ये एक्सप्रेशन अभी आप देखेंगे. I have written this expression, so this one this one. तो इसका मतलब ये F21 है. Now जैसे कि हमने बताया कि जो F12 वेक्टर है और F21 वेक्टर है, F12 वेक्टर इज द फोर्स ऑन द Q1 ड्यू टू Q2 in this direction, and F21 is the force on Q2 due to Q1 in that direction. आपने डायग्राम में देखा है. इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये जो R12 है या R21 है, इनका जब मैग्नीट्यूड लिखोगे दैट कम्स आउट टू बी R. इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आप जानते हैं. R21 या R12 का R मैग्नीट्यूड है, R21 R12 का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो जब ये एक्सप्रेशन इन मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा तो F21 F12 दोनों बराबर आएंगे. इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F12 इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F21, बट मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज नॉट सेम, विच इज़ क्लियर फ्रॉम हियर. यहाँ से क्लियर है कि F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R21. तो ये जो यूनिट वेक्टर, अब इसका मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी R है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं R इक्वल टू R, तो R लिख दिया R स्क्वायर. ये जो R21 वेक्टर R Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की ओर डायरेक्शन है इस वेक्टर की, तो उस और जो R12 होगा उसकी डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है, उसकी अपोजिट होगी. दैट्स वाई वी राइट नेगेटिव साइन यहाँ. ये नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा. ये जो आप देख रहे हैं ये और जो R12 मिल करके जो ये आ रहा है, तो ये जो चीज़ है F12 इक्वल नेगेटिव और F21, तो दिस इज F21. तो इट मीन्स फोर्स F12 इक्वल टू माइनस ऑफ 4 F21. तो ये क्लियर है, यहाँ से आप देखेंगे ये दिस इज. इसका मतलब कूलम्स लॉ जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वी गेट द आइडिया कि what are the forces which one charge apply on other or other charge apply on the first one, and what are the direction of the forces. Now इसका एक यूज़ है, एप्लीकेशन है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर एक ये सिस्टम ऑफ चार्ज है जो कि क्वाड्रिलेटरल है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, बिकॉज एवरी साइड इज हैविंग R. तो एक ये चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 kept at the vertices of this square. So Q1 charge experiences a force because of this Q4 Q3 and Q2. कहने का मतलब है कि Q1 के ऊपर ये तीनों Q2 Q3 Q4 फोर्स लगाएंगे. ऐसे ही Q4 पे भी 3 चार्ज फोर्स लगाएंगे, Q3 पे भी 3 चार्ज फोर्स लगाएंगे, Q2 पे भी 3 चार्ज फोर्स लगाएंगे. तो लेट अस कंसीडर दिस वन. अब जैसे Q1 है तो फोर्स इस Q1 पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? F12 F13 एंड F14. व्हाट इज दिस F12? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसकी वजह से. व्हाट इज F13? फोर्स ऑन दिस Q1 ड्यू टू दिस Q3. एंड व्हाट इज F14? F14 is the force on Q1 due to this charge Q4. तो अब जैसे आप देख रहे हैं F12 यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू दिस Q2. तो व्हाट इज दिस F21? F21 इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू दिस Q1. यानी F12 और F21 की डायरेक्शन अपोजिट है. ऐसी F14 और F41 की डायरेक्शन अपोजिट है. ऐसी F13 और F31 की डायरेक्शन अपोजिट है. हर पॉइंट पर ऐसे ही है, आप देख सकते हैं.
जैसे F43 यानी कि ये क्या है, व्हाट इज दिस F43? फोर्स ऑन चार्ज Q4 ड्यू टू Q3 इसकी वजह से इस चार्ज पे फोर्स। तो F43 का जस्ट उल्टा होगा F34, ये F34 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q4। तो नाउ हाउ यू विल फाइंड द टोटल फोर्स ऑन एनी वन ऑफ दिस चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं। इफ़ दीज चार्जेस आर इक्वल, अगर ये चारों चार्ज Q Q Q Q हो जाए तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। यू कैन राइट द एक्सप्रेशन विद द हेल्पिंग ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जैसे कि आप Q1 Q2 के लिए एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई दिस R²। ऐसे ही इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है यानी कि ये वाला F14 यानी कि जो 1 पर फोड़ने लगा है, तो Q1 Q4 डिवाइड बाई R²। ऐसे ही इन दोनों के बीच का फोर्स Q1 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। नाउ अगर ये दोनों सारे चार्ज इक्वल है तो ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर चार्ज है, अगर हम इनको पैरेललोग्राम के साइड से कंसीडर कर लें तो उनका रिजल्टेंट इस डायगोनल से आएगा। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन इन कंडीशन व्हेन द चार्जेस आर सेम, एंड F13 पहले से ही इस डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स क्या होगा इस चार्ज के ऊपर, व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज? टोटल फोर्स विल बी द सम ऑफ दीज टू फोर्सेस प्लस दिस फोर्स। सिमिलरली हियर, सिमिलरली हियर, सिमिलरली हियर। बट इन कंडीशन, अगर माना कि चारों चार्ज अलग अलग होते हैं तो F14 और F12 विल बी डिफर, फिर ये दोनों अलग होंगे। उस कंडीशन में द रिजल्टेंट विल नॉट बी लाइक दिस वे, F13 की ओर नहीं होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, बट दैट विल मेक सम एंगल विद F13। फिर F13 और उस इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट टोटल फोर्स on Q1 we can find out, same here and same here. So here are some these are the forces F12 F13, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सारे ये फोर्सेस लिखे हुए हैं। तो किसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, तो यू कैन जस्ट सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। इट इज़ ऑलरेडी विद यू, नाउ ये हमने सॉल्व किया एंड फाइनली वी गॉट दिस रिलेशन, so you can also find out this. Thank you.